کہ سٹاک مارکیٹ کا آج بھی برا حال ہے۔ سرمایہ کار محتاط ہو گئے۔ 100 انڈیکس میں کاروبار کے دوران 1000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ہمارے نمائندے حبیب خان اس وقت سٹاک ایکسچینج میں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی حبیب۔ آج پاکستان سٹاک ایکسچینج میں پھر ایک بار جو ہے وہ شدید مندی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ کاروبار کا جب آغاز ہوا اس وقت سے اب تک جو ہے مارکیٹ میں 1000 سے زائد پوائنٹس تک کی جو ہے وہ کمی ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ گزشتہ ہفتے کا جب کاروبار پر اختتام ہوا تھا تو 500 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ آج کیا وجوہات ہیں کہ مارکیٹ ایک بار پھر شدید دباؤ کا شکار دکھائی دے رہی ہے؟ سرمایہ کار بھی خاصے محتاط ہیں۔ بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ معاشی ماہر شہریار بٹ صاحب موجود ہیں۔ شہریار صاحب، مارکیٹ ایک بار پھر پینک سچویشن میں ہے، 1000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی، کیا وجوہات ہیں؟ کیوں مارکیٹ جو ہے یہ سب چیزیں بیئر نہیں کر پا رہی ہے؟ دیکھیے، اس کی ملٹیپل ریزن ہے۔ سب سے بڑی وجوہات تو یہی ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام، جیسے ہم مسلسل یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام پاکستان کی معیشت کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہے۔ آکسیجن ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا گورنمنٹ اس کے لیے مسلسل ڈیلے کر رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلی گورنمنٹ نے بھی جو ڈیلی ٹیکٹکس استعمال کی تھیں، یہ گورنمنٹ بھی انہیں کی فوٹ پرنٹس کے اوپر چل رہی ہے، اور کیونکہ پیٹرولیم پرائز ان کو بڑھانی چاہیے تھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کے لیے۔ ونس ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیں گے تو پھر ہمیں انٹرنیشنلی بھی فنڈنگ ہمیں اویلیبل ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ اس طرف سے تھوڑا ڈیلے کر رہی ہے۔ پھر پولیٹیکل سائڈ کے اوپر بھی کافی زیادہ پریشر آ رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کو کوئی لائف تھریٹس ہیں، اس کے بعد بھی امپیکٹ پڑا ہے مارکیٹ میں۔ پھر ہمارے ریزروز کے نمبر جس طرح سے کم ہو رہے ہیں، اور ڈالر پہ دیکھیں کنٹینیو پریشر پڑا ہے۔ معیشت کی جو اس وقت حوالے سے پالیسیز بنائی جا رہی ہیں، خاص طور پر آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے کوئی اس وقت جو ہے پلان ترتیب نہیں دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اگر بات کریں تو سیاسی عدم استحکام بھی ہے جو اس وقت ملک میں موجود ہے۔ ایسی افواہیں بھی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ شاید تحلیل کر دی جائے گی۔ تو ان سب چیزوں کا ایک پریشر ہے جو آج مارکیٹ پہ جو ہے امپیکٹفل ہو رہا ہے، اور 1000 سے زائد پوائنٹس تک کی کمی اس وقت تک جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے مارکیٹ میں۔ 43,400 کی سطح پر بند ہونے والی مارکیٹ آج جو ہے 42,300 پوائنٹ سے اوپر جو ہے وہ اس وقت ٹریڈ کر رہی ہے۔ حبیب کا بہت شکریہ کہ آپ تفصیلات بتا رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے اب آپ بتاتے ہیں کہ ڈالر نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ انٹر بینک میں ڈالر ₹1.47 مہنگا، ڈالر تاریخ میں پہلی بار ₹194 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ 11 اپریل سے اب تک ڈالر ₹11.07 مہنگا ہوا، جبکہ ڈالر پاکستان کے بیرونی قرضوں میں 1400 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ تفصیلات لیتے ہیں اشرف خان سے۔ اشرف، بتائیے گا کہ ڈالر کی قدر میں اضافے کی وجہ کیا ہے؟ جی، دیکھا جائے بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان کا بڑھتا ہوا درآمدی بل ہے جو کہ ریکارڈ سطح پہ پہنچ گیا، ساتھ ہی بیرونی قرض کی جو ادائیگی ہے اس پہ بھی روپیہ شدید دباؤ کا شکار ہے۔ آج بھی کاروبار کے پہلی ہی روز انٹر بینک میں ڈالر ₹1.47 مہنگا ہو گیا، ملک کی تاریخ میں پہلی بار ₹194 کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گیا۔ نئی حکومت آنے کے بعد جو کہ 11 اپریل کو آئی تھی، اس کے بعد سے اب تک ڈالر جو ہے ₹11.07 مہنگا ہو چکا ہے، اور یہاں پہ ماہرین کا کہنا ہے کہ 11 اپریل سے اب تک ڈالر ₹11 جو مہنگا ہوا ہے، تو پاکستان کے بیرونی قرضے جو اس پر $130 ارب ہیں، تو بیرونی قرضوں میں پاکستانی روپے میں 1400 ارب روپے کا بوجھ بڑھ گیا ہے، جس سے مزید معاشی مشکلات بڑھ جائیں گی۔ ٹھیک ہے اشرف خان، آپ کا بہت شکریہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کا صوبوں کو گندم کی خریداری کے لیے دیے گئے اہداف پورے نہ کرنے پر شدید برہمی کا اظہار۔ بولے، عوام کو کسی صورت مشکل میں نہیں ڈالا جا سکتا، وفاقی حکومت ہر صورت کم قیمت پر آٹا فراہم کرے گی، کسی قسم کی کمی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ صوبے 1 جون تک گندم خریداری کے اہداف پورے کریں۔ خبر آپ کو دے رہے ہیں، وزیراعظم شہباز شریف کا صوبوں کو گندم کی خریداری کے لیے دیے گئے اہداف پورے نہ کرنے پر شدید برہمی کا اظہار سامنے آیا ہے۔ حکومت نے ایک بار پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی ₹86.71 فی لیٹر تک پہنچ گئی ہے۔ پیٹرول پر سبسڈی ₹47.02 فی لیٹر، ہائی سپیڈ ڈیزل پر سبسڈی ₹86.61 فی لیٹر ہو گئی ہے۔ قیمتیں برقرار رکھنے کے باعث سبسڈی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ حکومت نے ایک بار پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تفصیلات لیتے ہیں اپنے نمائندے وقاص عظیم سے۔ جی وقاص۔ کیا ہے، اور اس سلسلے میں وزارت خزانہ کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی میں مزید اضافہ کیا گیا ہے، اور پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی جو ہے وقاص عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی وقاص بولیے۔ جی، یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کی وجہ سے سبسڈی ₹86.71 فی لیٹر تک پہنچ چکی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل ٹھیک ہے، وقاص عظیم ہمارے ساتھ موجود ہے، تفصیلات بتا رہے تھے۔ وقاص، آپ کا بہت شکریہ۔
बढ़ता दरामदी बिल मईशत के लिए चैलेंज बन चुका है। अप्रैल का पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल तारीख की नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। अप्रैल के पेट्रोलियम मसनूआत के दरामदी बिल में 94% रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। 10 माह में पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल पहली बार 17 अरब 3 करोड़ डॉलर हो गया है। आपको खबर दे रहे हैं कि बढ़ता दरामदी बिल मईशत के लिए चैलेंज बन चुका है। तफसीलात लेते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ। पाकिस्तान का दरामदी बिल रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गया। सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें तो अप्रैल में पाकिस्तान का जो दरामदी बिल है पेट्रोलियम मसनूआत का 94% इजाफे से 2 अरब 22 करोड़ की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। जो तारीख में पहली बार पाकिस्तान ने एक माह में 2 अरब 22 करोड़ डॉलर की जो मालियत के पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की हैं। इसके साथ ही देखा जाए इसमें इम्पैक्ट, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान में सबसे सस्ता पेट्रोलियम मसनूआत फरोख्त की जा रही, जिसकी वजह से डिमांड भी बढ़ गई और साथ में अरब लाइट क्रूड की भी जो कीमत में अप्रैल में जो तकरीबन 72% का इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से दरामदी बिल में भी इजाफा हुआ है। साथ ही जो डिमांड बढ़ी है, यानी कि जो तलब है, क्योंकि सस्ता पेट्रोल है, उसकी वजह से जो है पेट्रोलियम मसनूआत की डिमांड भी बढ़ गई है, उसका इस्तेमाल बढ़ गया है। और यहाँ पे देखा जाए रवां माली साल 10 माह में पाकिस्तान ने जो पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदी बिल है वो 96% का रिकॉर्ड इजाफा हो गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जो पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद 17 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गई है। इसका इम्पैक्ट है कि पाकिस्तान का दरामदी बिल जो है मुसलसल बढ़ रहा है और रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गया, जिसकी वजह से रुपए पर शदीद दबाव देखा जा रहा है। माशी माहिरीन का कहना है कि इस वक्त जो आपकी पेट्रोलियम जो सस्ती मिल रही है उसके इकदाम उठाने होंगे और सस्ती पेट्रोलियम। खान, आपका बहुत शुक्रिया। मुआशी बहरान कैसे ख़त्म करें? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के कायदीन का मुशावरती इजलास आज बुला लिया है। इजलास में सियासी, मुआशी और इंतखाबी इस्लाहात पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हुकूमत के मुस्तक़बिल से मुतालिक अहम ऑप्शन इत्तेहादी जमातों के सामने रखेंगे। तमाम इत्तेहादी जमातों की मंजूरी के बाद ही हुकूमत कोई हतमी फैसला करेगी। ज़राए का कहना है इजलास में इंतखाबी इस्लाहात पर भी मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना को भी तमाम मामलात पर एतमाद में लेंगे। मुल्क की मुस्तक़बिल के हवाले से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी का इजलास भी मुतवक्के है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का पुरानी प्राइस कंट्रोल कमेटियां ख़त्म करने का फैसला। महंगाई को ख़त्म करने के लिए नई प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों में अरकान असम्बली को शामिल किया जाएगा। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेते हैं। उमर, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त होशरबा महंगाई से अवाम परेशान है और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने एक अहम फैसला किया है कि जितनी भी पुरानी प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं उनको खत्म किया जाएगा। हमजा शहबाज शरीफ ने हदायत की है कि पुरानी प्राइस कंट्रोल कमेटियों को जो है वो खत्म किया जाए, जबकि असर नो जो नई प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं उसकी तश्कील दी जाएगी। हमजा शहबाज शरीफ ने हदायत की है कि नई प्राइस कंट्रोल कमेटियों में अरकान असम्बली को भी शामिल किया जाए, जबकि अवाम को हतमी तौर पर जो आवाम को रिलीफ देने के लिए अमली तौर पर इक़दाम किए जाए। हमजा शहबाज शरीफ का कहना है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए तमाम तर वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे और आवाम को महंगाई से रिलीफ दिलवाएंगे। जी उमर असलम, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे। साबिक वज़ीर आज़म और लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है मुल्की हालात तशवीशनाक हैं, फैसलों की बड़ी सियासी कीमत अदा करनी होगी। अभी तक तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई गईं, कोशिश है अवाम पर कम से कम दबाव पड़े। मुल्की मईशत 4 साल से ठीक नहीं। इमरान खान की हुकूमत की खराबियां दूर करने की कोशिश करेंगे। इस बार इलेक्शन चोरी नहीं होंगे। आज जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, जो हमारी तवक्को थी, उससे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर ही मुशावरत हुई कि किस तरह इन हालात पर काबू पाया जाए, किस तरह मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम दिया जाए और आवाम को जो रिलीफ मुमकिन हो वो दिया जाए। जो पेट्रोल डीजल के मामलात हैं जिनका असर मुल्क में महंगाई पर पड़ता है, ये अभी तक उनको इस्तेहकाम दिया गया है, कीमतें नहीं बढ़ाई गई। हालांकि आलमी मंडी में कीमतें बहुत बड़ी हद तक बढ़ चुकी हैं। जो कंडीशनैलिटीज़ तय हुई थी IMF के साथ पिछली हुकूमत में, उन पर भी अमल दरामद रहे ताकि वो निज़ाम भी चलता रहे और आवाम पर भी इसका बोझ कम से कम पड़े। जो खराबियाँ 4 साल में इमरान खान ने की हैं, हमारी हुकूमत की कोशिश है कि जो अरसा है इसके अंदर इन मामलात पर काबू पाने की कोशिश की जाए। सब इस बोझ को महसूस करें कि आज मुल्क की मईशत किस नहज पर पहुंच चुकी है और सब मिलकर इस मामले को हल करें।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इमरान खान को फूल प्रूफ सिक्योरिटी देने की हिदायत। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने शहबाज शरीफ को इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को चीफ सिक्योरिटी अफसर भी देने का हुक्म सादिर किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम सूबाई हुकूमतों को भी हिदायत करते हुए कहा है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जलसे जुलूसों के दौरान हर तरह की सिक्योरिटी फराहम की जाए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की काबीना तैयार कर ली गई। ओवैस लगारी का नाम सूबाई वज़ीर बल्दियात के लिए ज़ेर गौर है। ख्वाजा सलमान रफ़ीक का नाम सूबाई वज़ीर बराए महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के लिए ज़ेर गौर है। ख्वाजा इमरान नज़ीर का नाम सूबाई वज़ीर बराए महकमा प्राइमरी हेल्थ के लिए ज़ेर गौर आया है, जबकि मियां मुस्तफ़ा फ़िज़ाउर रहमान का नाम महकमा एक्साइज़ और ख़जाना के लिए ज़ेर गौर है और बिलाल यासीन फूड का महकमा संभालने के लिए तैयार हैं। तफसीलात लेते हैं कैसर खोकर से। कैसर, कहिएगा कि हमजा शहबाज की काबीना में कौन कौन शामिल होगा? जी बिल्कुल, मियां हमजा शहबाज शरीफ के अंदिया दिया है कुछ मुद्दों को काम करने के लिए, जिनमें मियां ख्वाजा सलमान रफीक जो है उनको महकमा स्पेशल हेल्थ केयर का वजीर बनाने का अंदिया दिया गया है और उनका नाम ज़ेर गौर है। ख्वाजा इमरान नज़ीर का नाम जो है महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए ज़ेर गौर है। सरदार अवैस लगारी का नाम जो है महकमा बल्दियात के लिए ज़ेर गौर है और मियां मुस्तफ़ा फ़िज़ाउर रहमान का नाम महकमा एक्साइज़ या महकमा खजाना के लिए ज़ेर गौर है, जबकि इसके साथ राना मशहूद जो है उनका नाम जो है महकमा एजुकेशन के लिए ज़ेर गौर है। और इन मुद्रा भी बने नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने अपने महकमों के इजलास करने शुरू कर दिए हैं और इनको हुकूमत ने वज़ीर बनाने का अंदिया दे दिया है। जी कैसर खोकर, आपका बहुत शुक्रिया। मिली यकजहती काउंसिल की सुप्रीम काउंसिल का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। सुप्रीम काउंसिल इजलास में बड़ी मजहबी सियासी जमातों के कायदीन शिरकत करेंगे। सिराजुल हक, साजिद नकवी, राजा नासिर, अबू अल खैर के अलावा दीगर कायदीन भी शिरकत करेंगे। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल और सियासी अदम बर्दाश्त के उमूर का जायजा लिया जाएगा। गोहर मसूद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और तफसीलात लेते हैं। जी गोहर। जी बिल्कुल, ये जो मुल्क में बढ़ती हुई सियासी अदम बर्दाश्त और मुतअद्दिद जो इस तरह की चीजें हैं जो मिली यकजहती कौंसिल के प्लेटफॉर्म पे इनको ये देखा जा रहा है कि इसमें इस्तेकाम नहीं है, खासकर सियासी तौर पर। इस हवाले से मिली यकजहती कौंसिल की सुप्रीम काउंसिल का इजलास आज इस्लामाबाद में तलब किया गया है, जिसमें अदम बर्दाश्त, सियासी बर्दाश्त और जमहूरियत के हवाले से उमूर पर गौर किया जाएगा। इसमें मिली यकजहती कौंसिल के जमातों के तमाम रहनुमा और बड़े जो सरबराहान है वो इसमें शिरकत करेंगे। खासकर तहरीके अदम एतमाद के बाद सियासी अदम इस्तेकाम और माशरे में फैलने वाले बिगाड़ की रोकथाम के हवाले से तजावीज़ पर गौर किया जाएगा और इसी हवाले से मिली यकजहती कौंसिल की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तमाम स्टेक होल्डर्स के वसी मुज़ाकरे की तजवीज़ भी दिए जाने का इम्कान है और इस हवाले से मिली यकजहती कौंसिल का तमाम फरीकैन को मुज़ाकरे और एक जगह बिठाने के लिए किरदार अदा करने की भी तजवीज़ ज़ेर गौर है। इसमें मिली यकजहती कौंसिल के कायदीन अहम तरीन इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और जो फैसले होंगे उनको मीडिया पर भी बताया जाएगा। जी गौहर मसूद, आपका बहुत शुक्रिया। शदीद गर्मी में बिजली के बहरान ने अवाम को परेशान करके रख दिया है। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशान हैं। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। शदीद गर्मी में बिजली के बहरान ने अवाम को परेशान कर दिया। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटों की लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। शहर कायद से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर लोड शेडिंग की वजह से वहां के रहने वाले परेशान हैं, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और शहरी काफ़ी परेशान हैं, उन्हें मुश्किलात का सामना है। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी आंख मचोली का सिलसिला जारी है। बिजली वहां भी नहीं आ रही, जबकि शदीद गर्मी है, बिजली नहीं आ रही, बिजली का बहरान सर उठा रहा है, शहरी परेशान हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है। रहीम यार खान में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया है। एक तरफ गर्मी का पारा 50
सेंटीग्रेड तक पहुंच गया तो दूसरी जानिब बिजली की लोड शेडिंग के बायस शहरियों का बुरा हाल है। शहरी कहते हैं कि एक बिजली महंगी कर दी गई तो दूसरी जानिब 8 घंटों की लोड शेडिंग ने परेशान करके रख दिया है। आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तमाम तर तफसीलात लेते हैं। आमिर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बोतल में बंद ही नहीं रहा कि ये इस वक्त जो है बाहर है और इसकी वजह से जो है शहरी जो है बुरा हाल है, क्योंकि गर्मी का जो दर्जा हरारत है वो 50 का जो दर्जा हरारत है सेंटीग्रेड है वो क्रॉस कर चुका है। सूरज सवा नेज़े पर है, बिजली नहीं है और इसकी वजह से जो स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चे हैं, जो कारोबारी तबका है, जो घरेलू खवातीन है, तमाम शहरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी हमारे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। शदीद गर्मी में अगर बिजली ना हो तो आवाम के लिए रहना बहुत ही मुश्किल है। एक बिजली महंगी और ऊपर से ना हो, डबल अजाब है। बस पाकिस्तान क्या मुतालबा करना चाहिए? हुकूमत से हमारा यही मुतालबा है कि बिजली तो पूरी करें ना जी, अगर महंगी भी है तो इसको पूरी तो करें, हमें बिजली दें, बुनियादी हकूक जो हैं आवाम के वो तो देना जी। बंदा हुई है और ये इन्होंने बताया कि किस तरह मुश्किलात का सामना है। हुकूमत से मुतालबा भी किया है कि बिजली की लोड शेडिंग के जिनको बोतल में बंद किया जाए ताकि गर्मी के सदर। आमिर, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध के ज़िला कंबर में दर्जा हरारत 40 से 50 सेंटीग्रेड रहने लगा। शहरियों ने शदीद गर्मी के बायस ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर लिया है। इखलाक चांडियो हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी इखलाक। भर की तरह सिंध के ज़िला कंबर में भी रोज़ाना 40 से 50 सेंटीग्रेड गर्मी होने के बाद जो है शहरियों ने ठंडी मशरूबियात का रुख कर दिया है। शहर के मुख्तलिफ चौकों पर लगाए गए स्टॉल पर जो है लोग वहाँ पर ठंडी मशरूबियात इस्तेमाल करने के लिए वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर ठंडी मशरूबियात इस्तेमाल करके जो है गर्मी को कम करने की कोशिश करते हैं। तो इस सवाल से जब हमने शहरियों से बात की, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है ज़्यादातर जो इस वक्त जो मौसम है वो 40 से 50 सेंटीग्रेड गर्मी ज़िला इंतज़ामिया की जान से मुख्तलिफ चौराहों पर भी ठंडी जो है सबीलें लगाई गई हैं, जिससे शहरी जो है वो वहाँ से जो है ठंडी इस्तेमाल जो सबीलें वो इस्तेमाल कर सकें और जैसे गर्मी से बच सकें। तो इन्होंने हुकूमत सिंध से ये भी अपील की है कि ज़्यादातर यहाँ पर जो है ठंडी मशरूबात के मुख्तलिफ जो चौराहे हैं, जहाँ जो देहात के लोग आते हैं उनके लिए जो चौराहे हैं, वहाँ से जो रास्ते आते हैं वहाँ पर ठंडी मशरूबात के जो है स्टॉल सरकारी सतह पर लगाया जाए ताकि उनको भी परेशानी का सामना ना हो। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के लिए यूसुफ रजा गिलानी, ताज हैदर, नवीद कमर और खुर्शीद जुनेजो के नाम तय कर लिए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के लिए तमाम सियासी जमातों को ख़त लिख दिया है। उस्मान जावेद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, स्पीकर कौमी असम्बली ने इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के लिए तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स को खत लिखकर अपने सियासी जमातों से नाम मांगे थे। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नामों को हतमी शक्ल दी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पार्लिमानी इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के यूसुफ रजा गिलानी, ताज हैदर, नवीद कमर और खुर्शीद जुनेजो के नाम तय किए हैं और ये नाम स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवाए जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स को इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के लिए नामों के लिए खत लिखा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नाम फाइनल कर लिए गए हैं, जबकि JUIF और मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से नाम अभी तक खत्मी नहीं किए गए, जबकि जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाप ने नाम जो है वो फाइनल करके भिजवा दिए जाएंगे। और ये जो नाम है इनमें इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के हवाले से जो मुख्तलिफ तजावीज़ हैं वो पेश करके इंतखाबी इस्लाहात की जाएंगी और उसके बाद उन्हीं इंतखाबी इस्लाहात के बाद इलेक्शन में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जाएंगी। जी उस्मान जावेद मलिक, आपका बहुत शुक्रिया।